All right, folks, we are going to start, and I will share my screen now. Okay, is the screen visible? The shared screen? Yes, sir. Okay, great. Thank you. Okay, so we are going to just a quick recap of survey sampling. Quick recap of survey sampling. So we said that you have a large population. You have a large population, and this could be a a random variable जिसको जितनी मर्जी बार चाहें आप उसकी वैल्यूज निकाल लें. Infinite times आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं. So that also represents a large population. So you have a large population with mean, true mean or population mean mu and variance sigma square. So you have this large population with mean mu and variance sigma square. Okay, this could be the number of chips which are produced in a factory. This could be number of people that you have in a very large city or across the globe. Or this could also be a random variable which has a mean mu and variance sigma square, and I can instantiate that random variable. Random variable basically जो एक distribution होती है उसकी, and when you perform the experiment once, you get one value of the random variable. You perform the experiment again, you get another value of the random variable. Okay, so you can perform this experiment a very large number of times. Okay, and that random variable gives you this mean mu and variance sigma square. So the question is that knowing that this large population has true mean mu and variance sigma square, true mean, true variance are mu and sigma square. Okay, um, if we roughly know the distribution, or maybe even don't know the distribution, can we find mu and sigma square? Can we find mu and sigma square by observing um, samples from the distribution or population, whatever you call it, distribution or population. So एक large population है, उसमें से आपने एक छोटा sample निकाला, and then you want to find out के what is the average salary of the people in Lahore. You get a sample, उनकी average salary निकालें. Does that average salary give you some information about the average salary of the entire city? कि ये एक बड़ी population है आपके पास, तो इस big population, and then you took a small sample from this population, वो sample ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें पता नहीं है. This is a random sample. This sample is also called a random sample. So you took a random sample, and that random sample will give you some exact values जिनका आप mean भी निकाल सकते हैं, जिसको हम sample mean कहते हैं. Okay? So we defined this quantity called sample mean x bar to be equal to 1 over n 1 over n into x1 plus x2 plus so on up to xn, where these xi's, these are the samples taken from the population. तो ये भी हो सकता है कि ये n लोग आपने पकड़ लिए हैं और उनकी सैलरीज पूछी हैं, ठीक है, या उनकी हाइट पूछी है, या उनका वेट पूछा है, या एक फैक्ट्री के अंदर ये
ये नंबर ऑफ चिप्स हैं और इनके अंदर आपने डिफेक्ट्स मालूम किए कि कितनी कितनी चिप्स के अंदर डिफेक्ट आया है. ओके, सो दिस इज अ सैंपल. या ये भी हो सकता है कि देयर वाज वन रैंडम वेरिएबल एंड यू परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट n टाइम्स, और वो रैंडम वेरिएबल की आपको n डिफरेंट वैल्यूज पता चल गई हैं, सम स्पेसिफिक वैल्यूज पता चल गई हैं, और वो x1 x2 ऑल द वे अप टू xn है. सो व्हाट वी कॉल सैंपल मीन एज the average value, the mean value of those samples, mean values of those samples. And then we said that x bar is a random variable, is a random variable. This is important. Why is x bar a random variable? Because this random sample that we have chosen, it could be anything. ये सैंपल इधर भी हो सकता था, ये रेड कलर में हो सकता था, या ये सैंपल जो है ये ग्रीन कलर में यहाँ पे भी हो सकता था. हमें पता नहीं है वो रैंडम सैंपल कहाँ से आ रहा है. सिंस वी डोंट नो, सो के सैंपल कहाँ से आ रहा है, so we don't know okay what value of x bar we are going to get. So the value of x bar will change if I change the random sample. Okay, so that is why x bar is a random variable, is a random variable. It's called the sample mean, but it is a random variable. And we saw that the expected value of x bar was equal to mu, and the variance of x bar was equal to sigma square over n, sigma square over n. ये हमने लास्ट टाइम देखा था. ठीक है, सो सैंपल मीन इज अ रैंडम वेरिएबल. कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगी सैंपल मीन की. दिस इज यू नो मे बी सम पीडीएफ ऑफ एक्स बार. ठीक है, यहाँ पे इसका मीन होगा और यहाँ पे ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, we don't know what this distribution might look like, but if the sample size is reasonably large, then we can expect that x bar की जो distribution है ये normal distribution होगी. Why it would be a normal distribution? Because of the application of the central limit theorem. Okay, so Maryam has a question. She's asking, x1 represents a single person in sample or a single sample? Both are the same thing. Both are the same thing. You know, when you have well, maybe not exactly the same thing. When you take a sample, I see what you mean, that if you take a sample, that sample might contain n different people, and these n different people, they will have their salaries or weights or heights, and each of those is x1, x2, x3. So x1 would be the salary of the first person, x2 would be the salary of the second person, x3 is the salary of the third person, xn the salary of the nth person, and the average salary will be calculated, will be the sample mean. चूंकि वो जो हमने n लोग जो select किए हैं वो randomly select किए हैं, तो ये average value इसकी कुछ भी आ सकती है. Since this average value could be anything depending upon our experiment, that is why it is a random variable. Bilal, you have a question, please go ahead and ask. सर इसी से रिलेटेड है कि ये जो हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं ग्रीन, ब्लू और ब्लैक में, ये साइज कांस्टेंट रख रहे हैं एन, या ये भी वेरी करते हैं? नहीं, ये साइज जो है ये हम अभी फिलहाल कांस्टेंट रख रहे हैं. हम इस साइज को चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है. हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन एक किया था जिसमें हमने कहा था कि अगर सैंपल का साइज हम बड़ा कर देते हैं तो दैट मीन्स कि ये n जो है ये छोटा हो जाता है. लार्ज n मीन्स स्मॉल वेरिएंस ऑफ एक्स बार. ठीक है, एक्स बार की जो वेरिएंस है वो कम हो जाएगी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये थोड़ी पतली हो जाएगी, विच मीन्स के एक्स बार की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें गोइंग अवे फ्रॉम द मीन, वेरिएंस आपको यही बताती है ना कि कितना वेरी करते हैं, कितना दूर आप मीन से जाने की टेंडेंसी है. अगर वेरिएंस कम है तो दैट मीन्स कि यू स्टे क्लोज टू द मीन. इफ द वेरिएंस इज वेरी लार्ज देन यू हैव अ टेंडेंसी टू, आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करें तो हो सकता है वैल्यू आपकी मीन से बहुत दूर की आ जाए. लेकिन देखिए यहाँ पे जब वेरिएंस कम हो जाएगी तो दैट मीन्स कि द विड्थ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो रेड सर्कल के अंदर मैंने बनाई है, द विड्थ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी स्मॉलर. ये हमने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि व्हेन n इज इनफाइनाइट, n इज वेरी 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 लार्ज, तो वेरिएंस जो है वो जीरो हो जाएगी. वेरिएंस जीरो का मतलब ये है कि ये पीडीएफ जो है ना ये कुछ
इस तरह का रहेगा कि ये बस सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा म्यू के ऊपर, विच मीन्स कि हमने एक्स बार ऐसा लिया है, एक्स बार ऐसा लिया है कि पूरी पॉपुलेशन ही को जो है ना आपने सैंपल के अंदर डाल दिया है, विच मीन्स के अब आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई है। एक्स बार निकालेंगे तो वो एक्यूरेटली आपको म्यू बता देगा। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन बिलाल? जी सर बिल्कुल। So large n means small variance of x, more accurate representation. X bar can be used as an estimate of mu, as an estimate of mu, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो म्यू के बराबर है, इसलिए एक्स बार कैन बी यूज्ड एज एन एस्टिमेट ऑफ म्यू। और वो हमें नजर भी आ रहा है कि जब n बहुत बड़ा होता है देन द वेरिएंस ऑफ एक्स बार टेंड्स टू 0 एंड expected value of x bar will be equal to mu. In fact, x bar itself will become equal to mu. ठीक है? Now we also defined what we called sample variance. ये तो sample mean था, फिर हमने एक चीज डिफाइन की थी सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस एक ऐसी चीज थी जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर वाज द सैंपल वेरिएंस वाज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, which means that we can use s square as an estimate of sigma square, Both of these guys are the unbiased estimators. X bar is an unbiased estimator, of mu. यानी अगर मुझे म्यू ट्रू मीन निकालना हो, हमें पता नहीं है क्या मीन है, हमें पता नहीं है पूरी पॉपुलेशन का क्या मीन है, लेकिन उसका एस्टिमेट निकालना है, तो हम छोटा सा सैंपल लें, उसमें से मीन निकालें और कहेंगे कि यार दिस इज ए गुड एस्टिमेट ऑफ म्यू, इट्स एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू। एंड सिमिलरली एस स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार वो म्यू के बराबर आती है एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर। अगर हमें वेरिएंस जो है पॉपुलेशन की या ट्रू वेरिएंस जिसको कहते हैं पॉपुलेशन की वेरिएंस, अगर हमने वो एस्टिमेट करनी है, सो आई विल यूज एस स्क्वायर एज एन एस्टिमेट। फिर हमने एस स्क्वायर डिफाइन भी किया था। हमने एस स्क्वायर कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वेरिएंस, ये i is equal to 1 to n। नॉर्मली तो ये होता है एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, लेकिन वो रैंडम वेरिएबल्स के लिए होता है। यहां पर आपने सैंपल मीन को माइनस किया है उसमें से, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1 over n minus 1। हमने ये शो किया था लास्ट टाइम कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये n-1 वाली टर्म जरूर डालनी पड़ती है। नाउ नोटिस दैट एस स्क्वायर is also a random variable, ये क्यों रैंडम वेरिएबल है? इसलिए रैंडम वेरिएबल है कि ये जो सारे एक्स आईज आपके पास आ रहे हैं ये आपके रैंडम सैंपल में से आ रहे हैं, जो भी सैंपल आ गया। अब हमें पता नहीं है कौन सा सैंपल उठा लेंगे, वो हम ग्रीन वाला उठाएंगे या रेड वाला उठाएंगे या ये ब्लैक वाला उठाएंगे, उसकी बेसिस के ऊपर ये एस स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाएगी, लेकिन हमें ये पता है कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सिग्मा स्क्वायर ही आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी सिग्मा स्क्वायर होगी। ठीक है, so we can use x bar and s square as estimates of parameter estimates of mu and sigma square। इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट एस्टिमेट कर रहे हैं। ये हमें ये नहीं बता रहे कि रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, ये हमें ये भी नहीं बता रहा कि अगर पॉपुलेशन में से एक बंदा आपने रैंडमली पिक कर लिया उसकी सैलरी कितनी होगी, ये वो नहीं बता सकता। वो बताने के लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, ये हमें ये भी नहीं बताएगा कि इफ यू नो द वेदर ऑफ लाहौर एवरी सिंगल डे फॉर द पास्ट 5 years, तो कल क्या वेदर होगा
ये भी नहीं बताएगा हमें, ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि एवरेज वेदर जो है वो कितना रहा है या उसकी वेरिएंस कितनी रही थी, ठीक है। इट विल नॉट बी एबल टू टेल मी द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, इट विल ओनली टेल मी अबाउट द मीन एंड वेरिएंस। ये जो पॉइंट एस्टिमेट्स हैं ये मुझे मीन या वेरिएंस के बारे में बताएंगे, इससे ज्यादा ये मुझे रैंडम वेरिएबल के बारे में नहीं बता सकते। रैंडम वेरिएबल के बारे में अगर पता करना है तो हमें या तो प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी या फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी या एस्टिमेशन करनी पड़ेगी। ऑल ऑफ दीज टर्म्स रफली सिमिलर, रफली थोड़ा थोड़ा फर्क है इनके बीच में। So we will explain what the difference is in the next lecture or maybe the one after that. लेकिन ये कि notice that कि x bar is point estimate of mu, and similarly s square is point estimate of sigma square. It's an unbiased estimate. Point estimate इसलिए कह रहे हैं कि mu एक point है, सिग्मा स्क्वायर एक पॉइंट एक नंबर है, उसकी एस्टिमेशन हम कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल की हम एस्टिमेशन नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ सो लास्ट टाइम फिर हमने कुछ एक एग्जांपल भी की थी, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट एग्जांपल हियर। वी कैन आल्सो शो दैट, वी कैन शो दैट, यहां शो नहीं करेंगे, वी कैन शो दैट x bar and s square are independent if the underlying population, if the underlying, जिस population में से आपने sample निकालें, if the underlying population is normal, अगर वो originally ये normal distribution से थी कि आपकी जो population थी उसकी salary जो है अगर वो आप plot कर दें frequency distribution में, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर दें आप, और आपके पास जो है वो एक नॉर्मल कर्व आ जाता है। अगर द अंडरलाइंग पॉपुलेशन इज नॉर्मल, या एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, उसका मुझे मीन और वेरिएंस नहीं पता, उसको मुझे एस्टिमेट करना है, ठीक है। सो अगर वो नॉर्मल था, अगर वो पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल थी या रैंडम वेरिएबल नॉर्मल था, तो एक्स बार और एस स्क्वायर जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वी कैन प्रूव दैट, वी कैन शो दैट, नॉट गोइंग टू शो दैट हियर। नाउ एक और चीज हमने लास्ट टाइम की थी, वो भी हमने थोड़ा प्रूफ किया था कि n-1 s स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। नोटिस कि यहाँ पे n-1 क्या चीज है, n-1 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। Similarly, sigma square is also not a random variable. n-1 is not a random variable. Sigma square is not a random variable. S square is a random variable. हमने ये कहा था कि this guy here, this is a scaled version of the sample variance, has a chi-square n-1 distribution. Has a chi-square distribution with n-1 degrees of freedom. ठीक है, ये भी हमने लास्ट टाइम शो किया था, ये हमने एक्चुअली इसका प्रूफ भी किया था। So I'm going to do a few examples today, but before that I am going to define a new type of distribution. Remember हमने बहुत सारी distribution define की थी. So we defined a lot of discrete distributions, we defined a lot of continuous distributions, we defined recall हमने कैसे define की थी, chi-square n distribution was equal to z1 square plus z2 square plus so on zn square, where zi's are normal 0 1 standard normal IID, independent भी हैं ये सारे, z1 z2 z3 zn, they are all independent, they're pairwise independent and totally independent of each other, and they are normal 0 1, which means they are standard normal distribution. ये n आप उनके स्क्वायर्स का सम ले लें तो ये chi-square n distribution, ये रिकॉल करना है, ठीक है। Now I'm going to define a new type of distribution. This type of distribution is very useful for the subsequent topic that we are going to cover, and that is called the interval estimates. So that distribution is called the student t distribution, या t distribution in simple words. So student t distribution, ये distribution क्या होती है, ये होती है कि if you have a standard normal z divided by a chi-square with n degrees of freedom,
डिवाइडेड बाय दिस नंबर n, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये कहलाती है टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. T distribution with n degrees of freedom. Okay. Now, there is a very simple proof of a theorem, very useful theorem, and this theorem is, it says that anyone recalls, पहले तो ये recall करें कि x bar minus mu over sigma over square root of n. What kind of distribution is this? ये क्या distribution है? Answers in the chat window. X bar is a normal random variable because of the central limit theorem. X bar is the sample mean. उसमें से उसका mean minus कर दिया, उसकी standard deviation से divide किया. So this is a standard normal. This is a standard normal distribution. ठीक है? यहाँ पे आप देखें कि sigma is the variance of the population. Sigma is the variance of the population. ठीक है? थ्योरम हमारा क्या कहता है, ये तो हमने सिर्फ रिकॉल करवाया है आपको, ये अभी थ्योरम का पार्ट नहीं है. थ्योरम जो है वो तो अब आ रहा है. थ्योरम ये कहता है कि इफ यू हैव x बार माइनस म्यू ओवर s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, ओवर s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये किया है कि ये जो सिग्मा था, हमें हो सकता है पॉपुलेशन के सिग्मा का पता ही ना हो, पॉपुलेशन के सिग्मा का पता ही ना हो, उसकी जगह पे मैं s यूज कर लूं. सो इफ यू यूज s, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन is a t distribution with n minus 1 degrees of freedom. By the way, we had said that S is an estimator for sigma. S square is an estimator for sigma square. Remember ये population variance का जो estimate था, वो हमने कहा था S square ही है, sample variance जो है वो population variance का या true variance का estimate है. ठीक है? So that means कि ये sigma की जगह पे अगर मैंने S लिख दिया है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए. Why? Because sigma is a constant and S is not a constant. S is a random variable. ठीक है? So थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. So इसीलिए ये जो t distribution होती है, this looks very much like the standard normal distribution. So this looks very much like the normal distribution, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है. So maybe if the normal distribution looks like this, then the t distribution might look like this. ये कुछ थोड़ी सी ऐसे होगी. Symmetric distribution है. This is also a symmetric distribution. This might look like this. Not too much different, but slight difference. Now, there is a little proof for that. I will refer you to the notes. बहुत ही simple proof है. आप उसको देखेंगे फौरन से 1 सेकंड में समझ आ जाएगा. By the way, this material that we are covering is from chapter 6 and chapter 7. अभी तक chapter 6 चल रहा था. Moving forward, अभी rest of the lecture के अंदर अब हम chapter 7 में से material cover करेंगे. Intro to probability and statistics. Intro to probability and statistics for engineers and scientists. By Sheldon Ross. ठीक है? Same author जिसने वो first course in probability लिखी हुई. Now, now I am going to talk about what we call interval estimates. Okay? Remember हमने ये कहा कि x bar interval estimates, and we said कि x bar is a random variable. तो x bar का मीन क्या है? x bar का मीन है mu, and x bar की जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर ओवर n. x bar की जो वेरिएंस थी सिग्मा स्क्वायर ओवर n है. ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू एस्टिमेट म्यू
कैसे एस्टिमेट करते हैं? यूज एक्स बार। एक रैंडम सैंपल लिया आपने पूरी पॉपुलेशन से और उस रैंडम सैंपल से आपने उस मीन निकाल दिया, जो भी वैल्यू आई आपने कहा दिस इज अ गुड एस्टिमेट ऑफ म्यू। हो सकता है कोई और थोड़ी देर के बाद एक और सैंपल लें तो कुछ और आंसर निकला है, दैट विल आल्सो बी एन एस्टिमेट ऑफ म्यू, क्योंकि एस्टिमेट ही कर रहे हैं ना, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे। बिलाल, योर हैंड इज रेज्ड, डू यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन? सॉरी सर, मैंने वो लो नहीं किया था, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से इज, वी आर गोइंग टू से कि ये आपने एस्टिमेट तो बता दिया, हाउ गुड इज योर एस्टिमेट, हाउ गुड इज योर एस्टिमेट, ये कैसे क्वांटिफाई करें? ये आंसर करने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल्स या इंटरवल एस्टिमेट्स होते हैं। सो इंटरवल एस्टिमेट क्या बताते हैं कि बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, म्यू से जितना इधर गए हैं उतना ही इधर गए हैं, ठीक है, बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट योर likelihood of finding mu in is in this region with certain probability, ठीक है। so that means कि अगर मैंने ये आपको x बार एक दफा बताया, फिर दोबारा बताया, फिर तीसरी दफा बताया, बार बार मैं सैंपल ले रहा हूं, बार बार सैंपल ले रहा हूं, आपको एक आंसर दिया जा रहा हूं, all of those answers are estimate of mu, all of those answers are estimate of mu. I want the answer, I want the answer to be very very confident answer, I want that answer to be a very very confident answer. तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? What can we do to increase the confidence? Answer in the chat window. Answers in the chat window. बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से स्मॉल सैंपल लिया और स्मॉल सैंपल लिया जो म्यू का एक एस्टिमेट है। हाउ डू वी नो कि इट्स ए गुड एस्टिमेट? इफ आई वांट टू मेक दिस estimate a better estimate, I should decrease the variance, I should decrease the variance of x bar. That means I should increase the sample size, take n towards infinity. Okay, thank you everyone who has answered this question. Okay, increase the sample size to decrease the sample variance, increase the sample size to decrease the sample variance. Well, you increase the sample size to decrease the not just the sample variance but increase the sample size to decrease the variance of x bar, क्योंकि अभी मैं सिर्फ म्यू को एस्टिमेट कर रहा हूं, मैं म्यू को एस्टिमेट कर रहा हूं, वेरिएंस से अभी सैंपल वेरिएंस से मेरा अभी कोई ताल्लुक नहीं है। I want the variance of x bar to be reduced, I want the variance of x bar to be reduced. Okay, so now recall कि x bar minus mu divided by sigma over square root of n, this was normal 0 1, this was normal 0 1. Okay, so if I can draw this, I can draw this normal distribution, if I can draw this normal distribution which is x bar minus mu over sigma over square root of n, ये आपको एक इस तरह की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये मिलेगी with mean 0 and variance 1, mean 0 and variance 1. So I want to be 95% confident, I want to be 95% confident कि जो वैल्यू आप बता रहे हैं मुझे x बार की, that value of x bar is within this interval. हमें ये पता नहीं है ये इंटरवल क्या है यहाँ पे, ये कौन सी वैल्यूज हैं कि मैं I want to be 95% sure, I want to be 95% sure. What that means is कि यहां पर जो एरिया आपका होना चाहिए, this area should be 0.95. What that means is कि this area here जो बाकी बच गया 0.95 में से वो 5% ही बचा है, वो 5% बचा है, उसमें से 2.5% इधर दे देते हैं और 2.5% इधर दे देते हैं, 2.5% इधर एंड 2.5% इधर, ठीक है। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इफ आई गिव दिस 2.5% एरिया, देन हु कैन आंसर के ये क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए, ठीक है। आई एम सेइंग कि आई वांट 0.025 which is 0.025, this is 2.5%, this is 2.5%, I want this area to be 0.025. So how do I get 0.025? देखते हैं
जी टेबल से देखते हैं। सो जी टेबल हमें क्या बताता है? जी टेबल इसमें 0.025 कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.5 सबसे छोटी चीज है और ये 100% तक जाता है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू व्हाट आई वुड लाइक हियर इज कि ये जी का जो टेबल है हमें लेफ्ट वाला एरिया बताता है, विच मीन्स के वो हमें एरिया ये टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट, इस एरिया को हमें 1 माइनस 0.025 करना है। 1 माइनस 0.025 इज 0.975। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट जी टेबल कि 0.975 कहाँ आता है। ये देखें जी 0.975 ये इधर मुझे मिल गया, 0.975 इधर मुझे मिल गया, एंड दिस इज 1.9 and 6 here, so this is 1.96, which means कि phi of 1.96 is equal to 0.975। ठीक है, what that means is कि अगर यहाँ पे मैं 1.96 लिखूं, अगर मैं यहाँ पे 1.96 लिखूं, तो to the left of this 1.96 the area is 1 माइनस 0.025। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस 1.96 लिख दूं, सो देन दिस सेंट्रल एरिया, ये वाला जो एरिया आपके पास है सेंट्रल एरिया, ये आपके पास 95% हो जाएगा। ठीक है, विच मीन्स कि मेरा जो इंटरवल है, इफ आई कैन फॉर श्योर से कि ये माइनस 1.96 से 1.96 के बीच में आ जाए, ठीक है, योर एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, this should fall between minus 1.9 and 1.96. This, the probability is 0.95 or 95% probability. Okay, so therefore the probability that this random variable, which is normal 0, 1, is between minus 1.96 and sigma over square root of n and 1.96, this probability is equal to 95% or 0.95 approximately. Yeah, so everyone is okay with that? Yeah, so rearrange करते हैं इसको rearrange करें। so ये sigma over n, ये वाली जो चीज है ये उठ के दूसरी साइड पे चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी या उधर चली जाएगी, और ये म्यू जो है ये आपको हम वहीं पे रहने देते हैं, एंड एक्स बार को भी हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो व्हाट यू विल गेट इज एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन is less than equal to mu is less than equal to x bar plus 1.96 sigma over n। तो एक दफा आपने एक रैंडम सैंपल उठाया, वो रैंडम सैंपल उठाने से आपने एक्स बार को कैलकुलेट किया, उसमें 1.96 सिग्मा ओवर एन अगर ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, उस इंटरवल के बीच में म्यू शुड बी फाउंड इन दैट इंटरवल 95% ऑफ द टाइम। 95% ऑफ द टाइम म्यू उस इंटरवल के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास एक्स बार आ गया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपके पास एक्स बार आ गया, फिर एक्सपेरिमेंट करते गए, ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपके पास एक्स बार आया। ऑल ऑफ दीज एक्स बार्स दैट यू आर गेटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ऑल ऑफ देम आर एस्टिमेट्स ऑफ म्यू। सो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किए, 95% ऑफ these experiments, 95% of these experiments will ensure that mu is between this guy and this guy. Mu is between A and B, is between A and B। ठीक है। अच्छा, अब ए और बी पता करने के लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो एन का पता होना चाहिए, बाय द वे दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एन। सो एक तो एन का हमें पता होना चाहिए, एक सिग्मा का पता होना चाहिए, विच मीन्स कि आई नीड टू नो द पॉपुलेशन वेरिएंस, आई आल्सो नीड टू नो द सैंपल साइज। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द सैंपल साइज, लुक एट एन।
लुक एट n, ठीक है। यहाँ पे इफ आई इंक्रीज n, इफ आई इंक्रीज n, इसका मतलब है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स कि x बार माइनस 1.96 सिग्मा ओवर n को अगर मैंने इंक्रीज किया, सो n जो है यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि दिस टर्म विल डिक्रीज, व्हिच मीन्स कि द इंटरवल विल बी लार्जर, ओके। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर, एग्जांपल हम करते हैं, बट उससे पहले this is called a two-sided confidence interval। इसी तरह one-sided confidence interval भी डिफाइन कर सकते हैं। one-sided confidence interval डिफाइन कर सकते हैं। one-sided confidence interval कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि probability z is less than 1.645, ये टेबल से देख सकते हैं, is equal to 0.95, ये 0.95 होती है, ठीक है। So what that means is कि if you have this standard normal curve, तो यहाँ पे आपके पास 1.645 है, इससे पीछे जो एरिया है आपके पास, this area is 0.95, okay। So the probability that z is less than this guy is equal to 0.95, but z is x bar minus mu over sigma over square root of n, less than 1.645 is equal to 0.95। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, सो द प्रोबेबिलिटी mu is greater than x bar minus 1.645 sigma over square root of n, this would be equal to 0.95, यानी with 95% surety you have the probability that mu would be greater than this guy, ठीक है। इससे बड़ा होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक एग्जांपल करते हैं। एक चीज और, लेट्स लुक एट n, ये तो हमने कर लिया। लेट्स आल्सो लुक एट सिग्मा। ये सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन की वेरिएंस है, लेकिन हो सकता है हमें पॉपुलेशन की वेरिएंस पता ना हो। इनफैक्ट अगर हम x बार को एस्टिमेट कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें उसका मीन नहीं पता। अगर हम म्यू के एक्स बार को एज एन एस्टिमेट यूज कर रहे हैं म्यू का, दैट मींस हमें म्यू का नहीं पता। अगर म्यू का नहीं पता तो गुड चांस है कि हमें सिग्मा स्क्वायर का भी नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन तो ये कह रही है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है इसमें आपके पास सिग्मा का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिग्मा का ना पता हो तो फिर क्या करेंगे? सिग्मा का ना पता हो तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट वी नो हाउ टू हैंडल दैट डिफिकल्टी। वो कैसे उसको हैंडल करेंगे वो भी अभी आपको बता देते हैं। What if sigma is unknown? What if sigma is unknown? If sigma is unknown, so use s square instead of sigma square, ठीक है। Why? Because s square is an estimate of sigma square और unbiased estimator है, वो हम कर सकते हैं। क्या ये हम कर सकते हैं? Yes, we can certainly do this, but need to be careful. Careful का क्या मतलब है अभी आपको बता देते हैं। So हमने देखा था कि x bar minus mu over sigma over square root of n was normal 0, 1, ये normal 0, 1 था, ठीक है। If I replace sigma by s, then x bar minus mu over s divided by square root n हो जाएगा। s जो है वो तो आप डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने 15 लोगों का सैंपल लिया, उनकी जो है सैलरी पूछ ली, उससे x बार भी निकल आएगा, उससे s भी निकल आएगा, सिग्मा नहीं निकलेगा। सिग्मा का सिर्फ एस्टिमेट आ सकता है, ठीक है। इसी तरह म्यू का सिर्फ एस्टिमेट आ सकता है। x बार एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, s एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन हियर, इसमें हर चीज जो है वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर म्यू तो हमें फाइंड ही करना है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने देखा था कि दिस इज ए टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दिस इज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन with n-1 degrees of freedom. So if I draw the t distribution with n-1 degrees of freedom, this is also a symmetric distribution, very similar to the normal distribution, and I want 95% or
90% or 99% confidence interval. Yeah. Now this is T distribution with n minus 1 degrees of freedom, n minus 1 degrees of freedom. So now I want this interval estimate. So I need these two quantities, minus t alpha over 2 n minus 1. ये भी बताते हैं आपको ये क्या quantities हैं, plus t alpha over 2 n minus 1. So ये constants हैं. These guys are constants. ये एक constant है और ये भी एक constant है. ये constant क्या बता रहा है? ये constant ये बता रहा है कि n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला एक कर्व बनाएं, ये जो रेड कलर में हमने बनाया हुआ है उसका पीडीएफ बनाएं, टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाएं और उसमें देखें एक पॉइंट उठाएं कि अल्फा बाय 2 और माइनस अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 और माइनस अल्फा बाय 2 वाला, एंड दैट पॉइंट इज वेयर दिस एरिया इज अल्फा बाय 2, दिस एरिया इज अल्फा बाय 2. ठीक है, सो दिस एरिया इज ऑफ कोर्स आल्सो अल्फा बाय 2. वी कैन शो दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होने की वजह से ये टी माइनस अल्फा बाय 2 जो है वो माइनस टी अल्फा बाय 2 एंड माइनस 1 बन जाएगा. ठीक है, एंड दिस एरिया हियर इज गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे एरिया जो है 1 होना चाहिए, सो दिस वुड बी 1 माइनस अल्फा. सो व्हाट दैट मींस इज कि द प्रोबेबिलिटी that minus t alpha by 2 n minus 1 between x bar minus mu over s, not sigma, divided by n is less than plus t alpha by 2 n minus 1. This is equal to, this probability is equal to 1 minus alpha. So infinity क्यों आ गया, 1 minus alpha. So the probability कि your t n minus 1 random variable, your t n minus 1 random variable, ये t minus n minus 1 random variable, this falls between this lower limit and upper limit. The probability of that is 1 minus alpha. Rearrange करते हैं जैसे हमने पहले rearrange किया था. So rearrange करते हैं इसको. So this would be equal to probability, इसको rearrange करें, so you will get x bar minus s over square root of n, not sigma over square root of n, and t over alpha by 2 n minus 1, not z alpha by 2, ठीक है, less than equal to less than mu x bar plus s over square root of n, not sigma over square root of n, and t alpha by 2 n minus 1. यानी अगर आप हमें देखें, हमने ऊपर जो इंटरवल एस्टिमेट निकाला था, जो ऊपर इंटरवल एस्टिमेट निकाले थे, टेक अ लुक एट दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने कहा था कि म्यू फॉल्स बिटवीन दिस गाय एंड दिस गाय विद 95% प्रोबेबिलिटी. 95% टाइम म्यू इस रेंज के बीच में फॉल करेगा. इस रेंज के लिए हमें सिग्मा का पता होना जरूरी था. एन तो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे. अगर हमें सिग्मा का नहीं पता तो हम एस को यूज कर सकते हैं, हम एस को यूज कर लेंगे, लेकिन फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी. वाई? बिकॉज एस की को जब यूज करेंगे तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वो जी की नहीं रहती, वो टी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, सो for 95% confidence interval, which means if I am 95% of the time, I want mu to fall between these two limits, lower and upper limit. I want mu to fall between this 95% of time. So for 95% confidence interval, we can use plus minus t. Alpha is going to be 0.05. So this alpha by 2.025, comma, n minus 1 as the confidence interval. Okay. और ये कहां से पता चलेगी ये चीज? T के टेबल से, टेबल्स. नाउ Z का एक ही टेबल होता है. Why? Z का एक टेबल इसलिए होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन 0 और वेरिएंस 1. T डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर एक और भी चीज आ जाती है. टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं. सो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत, एक टेबल नहीं होता, बहुत सारे टेबल होते हैं. हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक टेबल होगा,
हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक टेबल होगा। इनफैक्ट वो एक ही बड़े टेबल के अंदर जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बीच में डाल देते हैं, ठीक है। सो वी कैन टेक अ लुक एट, ये किताब के अंदर दिया हुआ है, इसी बुक के अंदर, इसका चैप्टर 6 और चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं, इसी बुक के एंड के ऊपर। एंड दिस बुक इज बाय द वे इज अवेलेबल ऑन LMS में, ये रीडिंग मटेरियल के अंदर पड़ी हुई है, सो वहां से काइंडली आप देख सकते हैं इसको। ओके, नाउ वी विल डू एन एग्जांपल, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ठीक है। एंड दिस इज 7.3a in the book, 7.3a in the book, ठीक है। So let's say you want to send a signal, एक सिग्नल भेज रहे हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या कोई साउंड सिग्नल है या कोई some sort of a signal जो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना चाहते हैं, ठीक है। So X is that signal and when you send that signal to Y, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है, रास्ते में उसमें कुछ नॉइज ऐड हो जाता है, तो हम नॉइज ऐड कर लेते हैं, नॉइज को ऐड करते हैं यहाँ पे। सो आई ऐड सम नॉइज हियर, एक्स के अंदर वो नॉइज ऐड होगा और आपके पास वाई बन जाएगा, ठीक है। सो योर वाई इज बेसिकली एक्स प्लस सम नॉइज एंड दिस नॉइज इज एन, ठीक है। लेट्स से जो सिग्नल हम यहाँ से भेज रहे हैं एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट सिग्नल भेजते हैं, अब ये हम चेंज भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन लेट्स से कि हम कांस्टेंट सिग्नल भेजते हैं म्यू, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो भी म्यू ही होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। एंड ये नॉइज व्हिच इज एडेड, दिस नॉइज व्हिच इज एडेड इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0, ये कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं, एंड वेरिएंस लेट्स से 4, वेरिएंस 4, ठीक है। सो लेट्स सेंड x 9 टाइम्स, 9 बार भेजना है हमने यहां से, ठीक है। पहले x को भेजा, यहां से हम हर दफा जो है वो म्यू भेज रहे हैं, हर दफा म्यू भेज रहे हैं, 9 बार हमने भेजा यहाँ पे और 9 की 9 दफा हमने म्यू भेजा, बट व्हाट वी रिसीव्ड एट 9 डिफरेंट टाइम्स इज गोइंग टू बी 9 डिफरेंट नंबर्स, वो हमें 9 डिफरेंट नंबर मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस रैंडम नॉइज हैज बीन एडेड टू दैट, तो ये 9 डिफरेंट नंबर आपको मिलेंगे। लेट्स से you measure y, you will get 9 different numbers, values, ठीक है। लेट्स से हम assume करते हैं, assume those values are, लेट्स से कि वो values जो हैं आपके पास वो हैं 5, 8.5, 12, 15, बहुत ज्यादा नॉइज ऐड हो गया, 7, 9, 7.5, 6.5, 10.5, ठीक है। ये वैल्यूज आपको मिली हैं। नाउ दिस गाय, दिस थिंग हियर इज वन सैंपल, ये एक पूरा सैंपल आपने ले लिया, पूरा सैंपल लिया है जिसके अंदर x1, x2, x3, x4 ऑल द वे अप टू x9 है। सो दिस इज ए कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इस पूरे को आप एक सैंपल कह दें। बस दफा किसी ये इस एक को भी सैंपल कह देते हैं एंड इस एक को भी सैंपल कह देते हैं, बट रियली व्हाट वी मीन हियर वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देता है कि दिस इज अ सैंपल दैट यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इनफाइनाइट टाइम्स नहीं एक्स को भेजा, हमने एक्स को सिर्फ 9 टाइम्स भेजा, ठीक है। और भी ज्यादा भेज सकते थे लेकिन सिर्फ 9 टाइम्स भेजे, ठीक है। सो सैंपल मीन निकालते हैं, x bar is going to be 1/9 or sum of all of these, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकलता है, ये आपके पास निकल आता है 9, ये 9 निकल आएगा, ये आपके पास 9 निकल आएगा। सबको ऐड करें, 9 से डिवाइड करें तो यू विल गेट दिस आंसर। सो सैंपल मीन इज, इनफैक्ट इसको x बार नहीं कहना चाहिए, इसको y बार कहना चाहिए, बिकॉज नाउ y को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। x तो हमने फिक्स किया हुआ है। So 95% confidence interval for the true mean, और ट्रू मीन क्या था? ट्रू मीन हमें पता है कि म्यू था, ट्रू मीन तो म्यू था।
ट्रू मीन तो म्यू था. व्हाई? बिकॉज expected value of y is equal to expected value of x, which is mu, plus expected value of n, which is 0. So ये expected value of y आपके पास mu, ये ट्रू मीन था. लेकिन हमें ये पता नहीं था, हम तो उसको एस्टिमेट कर रहे हैं. हमें वो इसलिए नहीं पता था कि म्यू है, बिकॉज हमने तो सिर्फ ये 9 ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये मेजर किए हैं और इनका हमने एवरेज निकाला है. तो ये आपके पास सैंपल मीन आ गया. इस सैंपल का मीन आपने निकाला तो सैंपल मीन हो गया. सो 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकालना है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की हमने एक्सप्रेशन पहले निकाली हुई है. एंड दैट एक्सप्रेशन वाज ये आपका x बार minus 1.96 sigma over square root of n. ये x बार minus 1.96 sigma over square root of n, यहां से लेके x बार plus 1.96 sigma over square root of n. This is your 95% confidence interval. 95% confidence interval. So what is sigma here? Sigma क्या है? Sigma क्या है? Answers in the chat window. Do we know sigma? Do we know sigma? ये y बार होना चाहिए. What is sigma? Well, sigma square is 4. Y की जो variance है, true variance जो है, y is equal to x plus n. उसी से अगर आप देख लें कि x is a constant. X is a constant mu. X को तो हमने constant mu कहा हुआ है. And n is 0.4 से normal 0.4. So y की जो variance है वो y की जो variance होगी वो भी 4 होगी. ठीक है. So sigma is going to be 2. So ये आपके पास इंटरवल क्या आ जाएगा? ये इंटरवल आपके पास आ जाएगा 9 minus 1.96 into 2 divided by square root of n, which is square root of 9. ठीक है. यहां से लेके कहां तक का? 9 plus 1.96 times 2 over square root of 9. ठीक है. ये जो भी आपके पास आंसर आता है, this is going to be 9 plus minus 1 point जो भी है 31 plus minus 1.31. This is your 95% confidence interval. ठीक है. You are 95% sure. You are 95% sure that you are within 1.31 of 9. Within 1.31 of 9. ठीक है. Now, पहले हमने मेंशन किया था कि अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्रीज करना है, if you want a higher confidence or lower confidence, a higher confidence, so आप 99% you want to be 99% confident. 99% confident. ठीक है. 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालेंगे? 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्कुल उसी तरह से निकालते हैं कि ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. और you want these 2 points here, such that this area here is 99%. So that means कि कोई 0.5% यहाँ पे रह गया है और 0.5% यहाँ पे रह गया. ठीक है. 0.5% का मतलब ये है कि 0.005. ठीक है. 0.005 जी टेबल से देख लेते हैं. 0.005 तो हमें मिलने वाला नहीं है. 0.995 मिलेगा. 0.995 कहां पे आता है? 0.995. This is somewhere between this guy and this guy. 0.995 is somewhere between this guy and this guy. So this is 2.57 or 8. 2.57 or 2.58. So ये हम देखते हैं कि this interval is going to be 9 plus minus
2.58 instead of this 1.96, क्योंकि 1.96 तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रहा था, multiplied by sigma divided by square root of n. So this is your 99% confidence interval. ठीक है? So intuitively सोचें, noise is independent of x. Aisha has asked the question, noise is independent of x. So intuitively अगर इसको सोचें कि if you want to be 99% sure कि किस इंटरवल के बीच में आपका म्यू फॉल कर रहा है, 99% श्योर होना चाहते हैं, तो आपको वो इंटरवल जरा बड़ा करना पड़ेगा, और यही हो रहा है यहाँ पे। दिस इंटरवल इज 9 प्लस माइनस 1.72, ये इंटरवल आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ गया, यानी कि ये आप 95% श्योर थे कि इधर फॉल करेगा, 99% श्योर हैं कि ये ब्लू वाले में फॉल करेगा, ये 99% श्योर है कि इधर फॉल करेगा, और रेड में मैं कर देता हूं 95% श्योर है कि वो इधर फॉल करेगा। सो वेरी नाइस, ठीक है। बट अगेन अभी तक हमें इस 2 का पता था, विच वॉज द वेरियंस ऑफ y, ठीक है। सो अब मुझे y का हमने एस्टिमेट निकाल रहे हैं। बाय द वे, इन दिस केस x इज नॉट द रैंडम वेरिएबल जिसके पैरामीटर हम एस्टिमेट कर रहे हैं। इन दिस प्रॉब्लम वी आर एस्टिमेटिंग द मीन एंड वेरियंस of y. Okay, so y bar is a good representative of the mean of y, is 9, and confidence interval for y bar for the mean of y, the true mean, is 9 plus minus 1.72, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, अगर 95% चाहिए तो वो 1.31 ऐड होगा। ठीक है, नाउ so now there is another example, continuation of this, बिल्कुल न्यू एग्जांपल नहीं है, continuation of this, and this example is 7.3e from the same book। ये हमने जो पहले एग्जांपल किए ये 7.3a थी, और बीच में कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, और फिर ये अब 7.3e आ गई है। So same example continues, but now the noise variance is not known. So once again we have y is equal to x plus n, यहां से आपका x आया, इसके अंदर noise ऐड हुआ, और इसके अंदर आपको y मिल गया। I want to estimate y bar and its confidence interval with maybe 95% confidence। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बताना है। ठीक है, अब अगर हमें सिग्मा का नहीं पता तो सिग्मा की जगह पे हम एस यूज करेंगे, बट एस यूज करने के लिए हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n जो है वो 9 है, यूज T8 which is T distribution with n-1 degrees of freedom। ठीक है, so सबसे पहले तो हमें y बार निकालना है, जो पहले की तरह 1/9 सम ऑफ ऑल, वो 9 आपके पास निकला था, हमने ये पहले निकाला था। ठीक है, वी कैन आल्सो कैलकुलेट एस स्क्वायर। ये इसीलिए तो यही तो मजा है कि सिंस वी वर नॉट श्योर कि सिग्मा क्या है, सिग्मा तो हम नहीं निकाल सकते, सिग्मा का हमें पता भी नहीं है, तो हम एस स्क्वायर निकाल लेते हैं। एस स्क्वायर का हमें पता है कि एस स्क्वायर इज 1/n-1, सिग्मा इज इक्वल टू 1 to 9 xi minus x bar होल स्क्वायर।
तो ये निकालें, ये निकालते हैं, एक्स आई की वैल्यूज डालते जाते हैं, एक्स बार हमने निकाल लिया 9, ये वैल्यूज सारी की सारी पुट करें इसके अंदर, यू विल गेट 9.5, ये 9.5 आपके पास आ जाता है, which implies that s will be equal to 3.082, ठीक है। obtained from data, ये जो आपने डेटा ऑब्जर्व किया है ना, वहीं से निकाल लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे y बार ये भी आपने obtained from data था, ये भी आपने डेटा को सबको ऐड किया और उसमें से 9 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपके पास, ये भी आपने इस डेटा से ही मैनिपुलेट करके और ये निकाल लिया, ठीक है। नाउ रेफर टू टी टेबल। सर जी 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 सर ये जो आपने स्केल निकाला है इसमें x ऑफ i माइनस एक्स बार होगा कि y ऑफ i माइनस y होगा? y ये वाई आई माइनस वाई, ठीक है ना, वाई को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, एक्स तो हमारा बेचारा वो एक कांस्टेंट ही है। थैंक यू। सो वी रेफर टू द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो अभी मेरे पास जो है वो इस राइटिंग पैड पे अवेलेबल नहीं है, वो किताब से हम देख लें, और किताब से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें चाहिए टी अल्फा बाय 2 8 एंड अल्फा इज 0.05, so this would be equal to t 0.025, 8, ये हमें पता चल जाता है 2.306 है टेबल से, और t के टेबल से फ्रॉम टेबल, ठीक है। सो नाउ द कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए कंपेयर टू द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने ये निकाला था? दिस वाज द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल व्हेन द वेरिएंस वाज नोन 9 प्लस माइनस 1.31, ठीक है। दिस वाज द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल व्हेन द वेरिएंस वाज नोन। इफ द वेरिएंस इज नॉट नोन, इफ द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन, ठीक है, तो हमने उसका एक एस्टिमेट लिया। अब मैं उतना ही कॉन्फिडेंस रखना चाहता हूं, तो मुझे इस एरिया को बड़ा करना चाहिए या छोटा करना चाहिए? वो बड़ा करना चाहिए, इंट्यूटिवली बड़ा करना चाहिए। भाई एक चीज आपको एग्जैक्ट पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरा ज्यादा हो जाएगा उस एरिया में। अगर आप कॉन्फिडेंस उतना ही रखना चाहते हैं, 95% ही रखना चाहते हैं, लेकिन आप वेरिएंस नहीं बता रहे हैं, अब आप उसका सिर्फ एस्टिमेट बता रहे हैं, तो आपको इंटरवल को थोड़ा बड़ा करना पड़ जाएगा, ठीक है। या अगर उतना ही इंटरवल रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस 95% से ड्रॉप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस 95% से ड्रॉप हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज नाउ यू डोंट नो द एग्जैक्ट वेरिएंस, अब आप उसका एक तुक्का लगा रहे हैं, एक एस्टिमेट लगा रहे हैं, ठीक है। सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल in this case is going to be 9 minus 2.306 into sigma की जगह पे 3.082. This is your S and this is your T value, जो पहले यहाँ पे आपके पास ये 1.96 ये Z टेबल से आती थी, ये 1.96 ये Z टेबल से आती थी, यहाँ पे अब ये T टेबल से आ रही है, this 2.306 divided by square root of n which is 9, ठीक है, comma 9 plus 2.306 into 3.082 divided by square root of 9, ये थोड़ी जरा ज्यादा वैल्यू आ रही है, so this is 6.63 to 11.37 which is the same as 9 plus minus 2.37. तो ये देखें जरा larger है, so everyone who answered that, thank you very much. This is a larger interval. तो नॉन वेरिएंस के केस में से ये larger, ठीक है। So what if the underlying population is not Gaussian, is not normal? अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर भी आंसर हमारा रफली ठीक ही होगा, ठीक है। Why? Because of the central limit theorem, ठीक है। लेकिन
हम कुछ ट्रिक भी कर सकते हैं. इन दिस केस व्हाट वी कैन डू इज कि हम ऐसे कर सकते हैं कि ये आपने सैंपल्स लिए, ये आपके सैंपल्स आ गए, and these samples are taken not from the Gaussian population. So these samples, अब मैं ये करता हूं कि ये इन सैंपल्स को बकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, इन सैंपल्स को बकेट्स में डिवाइड कर देते हैं. सो दीज आर सैंपल्स, ये आपका डॉट डॉट डॉट. सो ये आपके पास ये सैंपल आ गए, ये सारे आपके पास सैंपल हैं. ये एक ही बारी में आपने ये पूरा का पूरा वैल्यूज आपने पिक कर ली हैं, रैंडमली चोजन. तो ये आपने मुख्तलिफ बकेट्स बना दिए हैं, और फिर ईच बकेट के अंदर ये कुछ सैंपल्स हैं यहाँ पे, और ये इसको हम कह देते हैं ये बैच 1 है, और फिर ये बैच, फिर ये बैच 2 है, एंड सो ऑन. और ये बैच जो भी आपको बनता है 10 या 15 जितना भी है. सो नाउ ईच ऑफ दीज बैचेस, ठीक है, मीन ऑफ द ईच बैच इज कंसिडर्ड टू बी approximately Gaussian mean. Now you might say कि ये तो इतना बड़ा सैंपल था, ये सारों को आप लेते तो वो भी गॉसियन हो जाना था. वेल, सारे के सारे गॉसियन तो हो जाना था, लेकिन if the underlying population is not Gaussian, then x bar and s square, they will not be independent. So ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के हमें वैल्यूज बताने के लिए ये एक अंडरलाइंग assumption थी कि ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होना जरूरी थे. उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने क्या किया, बैचेस बना लिए, और बैच बनाया तो ये भी गॉसियन बन गया, ये भी गॉसियन बन गया, ये भी गॉसियन बन गया. ये सारे जो है ना गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से आपके पास मीन्स आ गए हैं. तो ये जो 10 आपके पास आंसर आए हैं, these 10 samples, these 10 units of samples are considered to be taken from a Gaussian population. Okay. Now, just like we have confidence intervals for the mean, we also have confidence intervals for the variance as well. यानी आपने variance भी तो estimate करनी है ना. So variance का जो estimate है, s square is an estimate of sigma square. S square is an estimate of sigma square. S square is a random variable. This is also a random variable. So similarly, we can provide an estimate of sigma square by stating what s square is. S square हमारे पास डेटा से निकल आती है, तो उसको हम कहते हैं कि एक दफा एक सैंपल पिक किया, उससे x बार जो आया वो म्यू का एस्टिमेट आ गया, जो s स्क्वायर आया वो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट आ गया. ठीक है. Now we can also provide a confidence interval for that. ठीक है. So Gaussian population consider करते हैं, consider Gaussian population, ताकि वो हमें बैचिंग ना करनी पड़े. By the way, there is one problem in the homework in which you have to use these batches. When you look at that problem, I think problem 13 है वो. We have 19 problems in the homework. The first 13 problems you should be able to do it after today's lecture. The rest of the 6 problems you should be able to do that after Wednesday's lecture. Lekin the homework is not due until 12th, and we have 2 free days for submitting the homework as well. So that should not be a problem. So consider the Gaussian population. Gaussian population consider करते हैं. Now recall करें, n-1 s square over sigma square. This was a chi-square n-1 distribution. ये हमने बहुत पहले किया, बिल्कुल लेक्चर के शुरू में ही हमने रिपीट भी किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर भी किया था कि n-1 s square over sigma square is a chi-square distribution with n-1 degrees of freedom. Therefore, the 1 minus alpha
कॉन्फिडेंस इंटरवल. नाउ एस स्क्वायर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है n-1 एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है. Chi square distribution is not symmetric. It's not symmetric. Why it is not symmetric? It's not symmetric because this is the sum of squares of normal. ये तो नेगेटिव होगी नहीं कभी भी. ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इस तरह की होती है. This is a chi square distribution. This is a chi square distribution. ठीक है. So यहाँ पे भी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर निकालना है तो हम इस तरह निकालेंगे कि एक तो ये एरिया हो गया आपके पास और एक ये एरिया हो गया आपके पास. ठीक है. एंड आई वांट दिस एरिया टू बी 1 माइनस अल्फा. सो दिस पॉइंट हियर इज सम कांस्टेंट and this point here is also some other constant. And this point here is chi square alpha by 2 n minus 1. कहाँ से आएगा? टेबल से आएगा. chi square के टेबल्स भी मौजूद होते हैं. 1 minus alpha by 2 n minus 1. ठीक है. Now unlike t distribution, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि minus chi square alpha by 2 n minus 1. ये नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि this is not symmetric. T distribution was symmetric. T distribution was symmetric. Chi square is not symmetric, so I cannot say that. ठीक है. So T distribution के केस में यहाँ पे हमने ये कह दिया था. Where did it go? Yeah. So यहाँ पे हमने कह दिया था कि T alpha by 2 n minus 1. This guy here. तो ये वाला जो था ये t minus alpha by 2 comma n minus 1 था, but t minus alpha by 2 is minus t alpha by 2 n minus 1 है. But that's not true for the case of chi square distribution because it is not symmetric. It is not symmetric. ये infinity तक जा रही है और यहाँ पे 0 है आपके पास. 0 से छोटा नहीं होगा chi square. Chi square is always sum of squares. Cannot be negative. Can never be negative. So 100% एरिया उसके अंदर आ रहा है जिसमें से 1 माइनस अल्फा हमें कॉन्फिडेंस में चाहिए. 1 माइनस अल्फा अगर आपको कॉन्फिडेंस में चाहिए, सो देन द प्रोबेबिलिटी दैट chi स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 with n minus 1 degrees of freedom less than equal to n minus 1 s square over sigma square less than equal to chi square alpha by 2 n minus 1 is equal to ये 1 minus alpha होना चाहिए. This area should be 1 minus alpha. Why? Because we have this guy in the middle. This is a chi square distribution with n minus 1 degrees of freedom. ये इस constant और इस constant के बीच में lie करती है. This constant के बीच में lie करती है. The probability of that is 1 minus alpha. 1 minus alpha. और ये constant जो है ये हमने सिर्फ टेबल से ही लुकअप करने हैं और कुछ भी नहीं है. Constant सिर्फ टेबल से लुकअप करने हैं. So इसको थोड़ा सा rearrange करते हैं. So the probability n minus 1 s square over chi square alpha by 2 n minus 1 is less than equal to sigma square n minus 1 square chi square 1 minus alpha by 2 n minus 1. This is equal to 1 minus alpha. Very quick example that I'm going to finish. Example, and this is example 7.3h in the book. Okay. So manufacturing of washers ये machines में लगते हैं washers manufacturing unit वहाँ पे washers बन रहे हैं, कुछ थिकनेस के होते हैं. तो वो हम चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट थिकनेस हो उसकी. ठीक है. लेकिन हमें पता नहीं है कि उसका मीन वैल्यू क्या आती है. कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाती है. स्मॉल वेरिएशन, वेरी स्मॉल वेरिएशन, वेरी स्मॉल वेरिएशन इन थिकनेस. आइडियली तो उनको एक जितनी थिकनेस का होना चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ी सी वेरिएशन हो जाती है. सो वो थिकनेस की हमने वैल्यूज ऑब्जर्व की. ऑब्जर्व सम वैल्यूज, 10 वैल्यूज ऑब्जर्व करते हैं. तो आपके पास 0.123, 0.124, 0.126 आ रही है, कभी 0.120 आ रही है.
और फिर 0.130 आएगी, एक वॉशर बहुत ही बड़ा बन गया, ये 133 वाला बन गया। फिर कुछ 125 आ रही है, 0.128 आ रही है, 0.124 आ रहा है, 0.126 आ रही है। ठीक है, दीज आर द, आपने 10 वॉशर्स इकट्ठे किए हैं और उसने तो मिलियंस बनाए हैं, उसमें से आपने सिर्फ 10 इकट्ठे किए हैं और उस 10 में ये वैल्यूज आपको मिली। ठीक है, नीड 90%, not 95% or 99%, need 90% confidence interval of sigma square. सो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक तो x बार निकालें पहले। x bar is going to be equal to 1/10 summation of all of these. This turns out to be equal to 0.1259. Okay. This is a estimate of the mean thickness. ठीक है, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकाल सकते हैं, कैन बी फाउंड। ठीक है, लेकिन हम वो नहीं करने हैं, हमसे उसने सवाल में पूछा है कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा स्क्वायर का निकालना है। इसका हम निकाल सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर का ही निकालते हैं। नाउ एस स्क्वायर भी डेटा से आ जाएगा। एस स्क्वायर आपके पास कैसे आएगा डेटा से? वो आएगा 1/n-1 which is 9 summation I is equal to 1 to 10 xi minus x bar which is 0.1259 whole square. ठीक है, and this s square turns out to be 1.366 into 10 to the minus 5. ठीक है, now from the tables, from chi-square and tables, again they are always available. Chi-square 0.95,9, that constant here, ये वाला जो constant था, this constant here 0.959 was equal to, ये टेबल से हम पढ़ेंगे, पॉइंट ये आ जाता है, and chi-square 0.059, this turns out to be 16.917. ये हमने टेबल से कहीं से देख लिया। ठीक है, thus 90% confidence interval, 90%, so this is 90% and this area is 0.05 and this area is also 0.05. So 90% confidence interval for sigma square, not for the mean. मीन का अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल है, क्योंकि मीन भी आप एस्टिमेट कर रहे हैं, जब भी एस्टिमेट करेंगे तो कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। सिग्मा स्क्वायर अलग से एस्टिमेट हो रही है एस स्क्वायर को यूज करके, उसका अपना अलग कॉन्फिडेंस होगा। ओके, सो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा स्क्वायर is going to be, ये आपकी जो एक्सप्रेशन है, n-1 s square over chi square alpha over 2 n-1. so ये मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ। so this is n-1 is going to be 9 into 1.366 into 10 to the minus 5 which is your s square, n-1 s square, ये n-1 s square ये वाली टर्म आ गई है, और नीचे chi square की जो कांस्टेंट आया था हमारा, and that constant was 917. ये 917. So this is 1 minus alpha, by the way. And this quantity here is 10 to the minus 5 over 3.334, okay, which is equivalent to 7.267 into 10 to the minus 6, say 36.875 into 10 to the minus 6. Okay, so what that means is that sigma square lies in this interval. Sigma square lies in this interval. ये आपकी जो वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस जो होगी, will lie in this, ये population variance will lie in this interval with 90% confidence, or 90% of the time, 90% of the time. Okay.
हम सिग्मा का भी कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं. सिग्मा's कॉन्फिडेंस इंटरवल कैन आल्सो बी फाउंड. वो कैसे फाइंड करेंगे? वो बस इसका स्क्वायर रूट ले लें. हमने कहा है इसके और इसके बीच में सिग्मा स्क्वायर रहता है, तो दैट मींस कि इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें. दैट वुड बी द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर sigma. This would be equal to square root of this guy is going to be 2.696 10 to the minus 3, say 6.072 into 10 to the minus 3, which means that your standard deviation will fall between these two guys 90% of the time when you run the experiment. आप experiment 500 दफा कर लें, उसमें से 90% of the time your variance will be between these two numbers. Variance will be between these two numbers. So, so there is a, in the notes I have the last 2 pages जिसके अंदर summary दी हुई है. कोई new material नहीं है, summary दी हुई है. I am not going to go over the summary again. Next time हम वो करेंगे जो हमने क्लास लेक्चर के शुरू में हमने कहा था कि these are point estimates. हम सिर्फ सिग्मा और म्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर और म्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं. नाउ वी वुड लाइक टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, कि क्या वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की. कि आपने ये x और y जो है इसमें आपने x भेजा और y ऑब्जर्व करते गए, ठीक है, तो गेस करें कि x क्या था. गेस करें कि x क्या था. x could have been a random variable itself, लेकिन आपने x भेजते गए हैं और y को आपने ऑब्जर्व करना है. बार बार y को ऑब्जर्व करके can you tell me what value of x is. So similarly, if you know the weather temperature of a particular location for the past 5 years, can you tell me what the weather is going to be like, what the temperature is going to be like tomorrow. ये आंसर करने के लिए we will look at the estimation in the next lecture. Next lecture के अंदर estimation को हम देखेंगे. If there are any questions, I'll be happy to answer now. Otherwise, फिर मैं session बंद कर दूंगा. Any questions? Sir, I have a question which is not related to this lecture, but sir, Z table जो हमारे पास अभी LMS पे है, उसमें completely सब Z की values तो नहीं है ना हमारे पास? Because I was doing सब values हैं, सब values हैं, बस granularity उसकी जो है वो सिर्फ जो है वो 2 digits तक है. So ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे. So you should be able to see this on the screen. Yes. कि इसकी जो granularity जो है वो 2 decimal accuracy तक है, उससे ज़्यादा की नहीं है. Right. तो सर इसका मतलब है कि Z की वैल्यू 3.49 से एक्सीड नहीं हो सकती. Z की वैल्यू 3.49 से एक्सीड हो सकती है, वो और भी 0.9999 आ जाएगा. और अगर phi of 4.8 कोई मुझे कहेगा तो मैं उसे यही कहूंगा कि 0.9999 और आगे भी हो सकता है कुछ हो. Right. इस तरह का, ठीक है ना. Because we know that phi of infinity is going to be 1. Phi of infinity is going to be 1. Infinity के लेफ्ट पे कितना एरिया होगा? 1 एरिया होगा, 100% एरिया होगा उसके, ठीक है ना. Right. Right. Thank you. जी. Any other question? Bilal, I see your hand is raised. जी सर, वो हम कहते हैं कि 90% आपकी आवाज नहीं आ रही बिलाल. The volume is very low. जी, ये जो हम बात करते हैं कि 90% कॉन्फिडेंस है किसी चीज के अंदर, तो दिस इज सेम एज सेइंग कि हम the probability of certain number falling in that interval, confidence interval, is 90%. Probability 90%. That is not true. That is not true, and there is a very delicate reason for that. वो delicate reason जो है ना, वो आप किताब से पढ़ें. अगर आपको नहीं पता चलती तो फिर वो मेरे से ऑफिस आवर्स में पूछ लें. बट इसका ये मतलब नहीं है कि probability of that, because देखें म्यू इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल. तो मैं ये नहीं कह सकता कि म्यू जो है वो इधर फॉल करेगा विद 90% प्रोबेबिलिटी. व्हाई? बिकॉज म्यू इज नॉट इवन अ रैंडम वेरिएबल. म्यू तो एक कांस्टेंट है. किसी कांस्टेंट के ऊपर तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते ना. हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, उसमें से 99% ऑफ द टाइम म्यू जो है वो इस रेंज के अंदर फॉल करेगा. that is okay. Saying that is okay. Saying this ke the probability that mu is between this and this is this constant and this constant is 99%.
that is not right because mu itself is a constant. किसी constant के ऊपर हम probability नहीं लगा सकते. ठीक है सर, ये जो आज मटेरियल कवर किया और पिछली क्लास में भी, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये स्टैट की ज्यादा चीज लग रही है, इट्स नॉट मोर ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? This is a precursor to the estimation theory. This is more statistics. In fact, Yeah. this is a statistical inference and leading to that. और इससे जो है ना हम estimation theory के concepts जो है वो build करेंगे. So अभी हमने जो किया ये point estimates किए हैं. This is more statistics. However, understand that कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक population की जो है वो एवरेज सैलरी निकालने के लिए जो है वो कर सकता हूँ. ये मैं एक रैंडम वेरिएबल का, कोई रैंडम वेरिएबल है उसका मीन और वेरिएंस उसकी एस्टिमेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ. एंड नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि हम उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को ही कर रहे होंगे. ठीक है सर, ये आखिर में एक लेम सा क्वेश्चन कि मतलब ये थ्योरी डेवलप हो रही थी सारी ये, तो यानी जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं वो कैसे आफ्टर ऑल उन्होंने निकाले कि उसके अगेंस्ट चेक किया जी 95% कॉन्फिडेंट है हम लोग, हम 99% कॉन्फिडेंट हैं, तो वो इन द फर्स्ट प्लेस पॉपुलेशन के पैरामीटर कैसे एम्पिरिकली मेजर हुए थे? क्योंकि हम कैसे क्लेम करते हैं कि हम एग्जॉस्टिव मेजरमेंट्स कर चुके हैं सारी, तो अब जी सैम्पलिंग हो रही है उसके बाद. नहीं, एग्जॉस्टिव मेजरमेंट्स तो हमने नहीं की हैं. हम तो सिर्फ ये कि हमने ये कहा है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने प्रूव कर लिया, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया ना. फिर हमने कहा कि बैच साइज आपका जो है वो बड़ा हो गया, तो उससे जो है ना वो आपके पास नॉर्मल पॉपुलेशन है. अगर नॉर्मल पॉपुलेशन की अजम्पशन के साथ जाएं तो देन एवरीथिंग एल्स इज जस्ट मैथमेटिकली फाउंड. इट्स उसके लिए हमें कोई सैम्पलिंग करके वेरीफाई करने की, एम्पिरिकली वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है. अगर आप कोई चीज मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके लिए एम्पिरिकल एविडेंस की जो है वो जरूरत रह नहीं जाती है. जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एक जमाने, अभी तो सारे लोगों को पता है कि व्हेन यू रिसीव द वायरलेस सिग्नल्स ऑन योर मोबाइल फोन, तो उसके ऊपर जो है वो सिग्नल ऊपर नीचे होता रहता है. इट्स ए रैंडम वेरिएबल और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होती है, रेली डिस्ट्रीब्यूशन होती है या नाकागामी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ठीक है, जिस जमाने में ये नहीं पता था उस जमाने में लोग पता है क्या करते थे? उस जमाने में लोग ये करते थे कि एक जगह पे कहीं सिटी के बीच में एक आपने ट्रांसमीटर रख दिया और फिर गाड़ी को जो है वो भगाते रहे, उसके अंदर रिसीवर रख दिया गाड़ी में और मेजरमेंट्स करते रहे बेशुमार मेजरमेंट्स की. उसके बाद उन मेजरमेंट्स को जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर दी और एक आपके पास जो है ना वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती थी विच वाज एन एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन. किसी को पता नहीं था कि वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन बाद में पता चला कि जी थ्योरी डेवलप हुई जिससे पता चला कि ये रेले फेडिंग होती है, रेले रैंडम वेरिएबल होता है जो सिग्नल्स को ऊपर नीचे करता है इन सर्टेन एनवायरनमेंट्स. तो उसके ऊपर वो एम्पिरिकल डेटा जो है वो फिट करके देखा तो वो फिट भी होता था पूरा. सो वो थ्योरी मैथमेटिक्स वाली जो है वो एक और टाइम पे अलग से डेवलप हुई और ये जो एक्चुअल मेजरमेंट्स थी, ये एक्चुअल मेजरमेंट्स करके उन्हें ये पता चला कि वो ये तो वही वाली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. जी जी. Any other questions? No. So I'm going to stop the share now. Thank you so much, and I'll see you. We have a test, by the way, on Sunday. We will make an announcement. वो piazza पे हम डाल देंगे, and we'll see you on Wednesday.